بہت ہی بڑا فضل و کرم ہوا۔ رب ذل جلال ہم سب کو مبارک مہینے کے بعد پھر ایک مرتبہ جمع ہونے کی توفیق۔ جی لینا اس کے بعد مجھے خوشی ہوتی ہے کیا میں بیچنے آتے بیچنا کو اللہ کے لے کے اللہ کسی ذریعے بنایا ہے بیچنا کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ المولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ماں بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہوا۔ رب ذل جلال ہم سب کو مبارک مہینے کے بعد پھر ایک مرتبہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا۔ میرے ماں بہنوں، الحمدللہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے۔ اس ماہ کے اندر روزے رکھے، قرآن پڑھے، خیر و خیرات کرے، الحمدللہ وہ کامیاب ہو گئے۔ رمضان گیا تو روزے بھی گئے، نماز بھی گئے، ایسی کوئی بات نہیں۔ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، لیکن نمازیں تو کیا ہے، موت تک ہم سب پر فرض ہے نہیں ماں؟ موت تک ہم سب پر نمازیں فرض ہیں۔ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا سخت ضروری ہے۔ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا سخت ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں، میرے مقدس کتاب جسے قرآن کہتے ہیں، یہ میں سیکھنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، ہم ان کے لیے بالکل آسان کر دیا ہے۔ قرآن کو ہم نے ان کے لیے بالکل آسان کر دیا ہے۔ میرے ماں بہنوں، میں کئی مرتبہ کہہ دیا ہوں، اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کو آنکھیں دیں گے۔ ایک قرآن پاک کو آنکھیں دیں گے۔ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے آنکھوں سے پہچانتا ہے، اپنے آنکھوں سے پہچانتا ہے۔ میرے ماں بہنوں، قرآن پاک سب کے لیے اتارا گیا ہے۔ یوں نہ سمجھو امیروں کے لیے، صحت مندوں کے لیے، تندرستوں کے لیے، مالداروں کے لیے نہیں۔ مالدار، غریب، تندرست، بیمار وغیرہ وغیرہ سب اللہ کی نظر میں ایک ہی ہیں۔ سب کی ہدایت کے خاطر قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جائے، آسمان سے بارش برسے تو بھائی اس سے فائدہ کوئی خاص طبقہ اٹھاتا ہے؟ سب اٹھاتی۔ بولو میرے ماں بہنوں، بارش برسا تو اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ سب اٹھاتے ہیں۔ انسان تو انسان، چرند پرند، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے نزول ہونے والی کتاب قرآن پاک ہے، اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانی چاہیے، اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانی چاہیے۔ میرے عزیز ماں و بہنوں، الحمدللہ بچوں کو پڑھانے کے خاطر، قرآن سکھانے کے خاطر، بچوں کو اچھی اخلاق، اچھی تربیت کرنے کے خاطر چپے چپے میں مدارس کو قائم کیا گیا ہے۔ آج اس سے فائدہ ہم نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے ماں بہنوں، بچوں کو تم قرآن پڑھاؤ، کلمات پڑھاؤ، دعائیں سکھاؤ، اور کیا ہے ان کی زندگی کس طرح گزارنا ہے وہ بھی تم ان کو سکھاؤ۔ ہمارے بڑھاپا میں بچے ہمیں کام آئیں گے، ہماری ضعیفی میں بچے ہم کو کام آئیں گے۔ آج وہ بچوں کو ہم نے دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا، احادیث نہیں سکھائے، اچھی تربیت ہم نے نہیں کیا، تو ایک وقت آئے گا میرے ماں بہنوں، کیا ہے یہ بچے ہمارے لیے بجائے ثواب جاریہ بننے کے، کیا ہے بچے ہمارے لیے ایک وبال بنتے ہیں، یہ بچے ہمارے لیے ایک عذاب بنتے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی اور قرآن سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ماں بہنوں، ایک واقعہ ذرا غور سے سنو، بس میں زیادہ کیا کہنا نہیں چاہتا ہوں، موسم زیادہ گرم ہے، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے معزز ماں بہنوں، ایک کیا ہے میاں بیوی کی ایک جوڑا زندگی گزر رہی تھی۔ ارے بیوی حاملہ ہو گئی ہے، اب شوہر کیا ہے خوشیاں ظاہر کر رہا ہے، اپنے بیوی سے کہہ رہا ہے بیگم لڑکا پیدا ہوگا، اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے،
कौम खिदमत की रहबरी के खातिर इसको खड़ा करेंगे। अरे दोनों मियाँ बीवी बड़े शौक और ज़ौक से बातचीत करते रहते हैं। आखिरकार शौहर नसीहत करता है, बेगम अगर मैं इंतकाल कर जाऊं फिर भी तो अपने बच्चे को क्या करना, कुरान पाक पढ़ाना। मेरे अजीज माँ बहनों, ये जोड़ा इतना नेक जोड़ा नहीं था, इतना पाक साफ जोड़ा नहीं था। अरे इसका बच्चे का क्या है, ये औरत का शौहर नशा करने वाला था, कदम कदम पर गुनाह करने वाला था, फिर भी इसकी एक अच्छी तमन्ना थी, अगर बेटा हो तो मैं हाफिज बनाऊंगा। मेरे माँ बहनों, हाफिज कुरान बनाने पर हम क्या अजर मिलता है, जरा गौर से मेरे तरफ सुनो। मेरे माँ बहनों, जब इसका क्या है, ये बीमार होकर इसका बाप मर गया, बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, जब पैदा हो गया माँ शौहर की नसीहत के मुताबिक, बीबी शौहर की नसीहत के मुताबिक जो बच्चा चलने के काबिल हुआ उसको उंगली पकड़कर मदरसे में ले जाती है। एक आलिम दीन से कहती है, मौलाना साहब मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दीजिए। क्या बोलते मेरे माँ, सुनते ही इधर है, सुनते ही सब। हाँ, मौलवी साहब से जाकर कहती है, मौलाना साहब मेरे बच्चे को अलिफ बा पढ़ा दीजिए, कुरान पाक पढ़ा दीजिए, मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए। मेरे माँ बहनों, बच्चा पहला दिन मदरसे के अंदर कदम रखता है, इसका बाप गुनहगार था, तुमको मालूम है, शराबी था, कबाबी था, सूदखार था, इसकी वजह से इसके कब्र में इसको अजाब हो रहा था, करवटे अजाब दी जा रही थी, वो तकलीफों पे तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा था। मेरे माँ बहनों, जब इसका बच्चा मदरसे में कदम रखा, उस्ताद के पास जाकर बैठ गया, उस्ताद जी ने भी क्या किया, मौलाना साहब ने इस बच्चे को बिठाकर पहली फुर्सत में क्या है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम सब भी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बच्चे को उस्ताद मोहतरम कहते हैं, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बच्चा तुतली पतली जबान में, अरे छोटा बच्चा है, जबान सही नहीं चल रही है, ये भी पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका मतलब, जिसका तर्जुमा क्या है। मेरा अजीज माँ बहनों, बच्चा कह रहा है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मासूम बच्चा कह रहा है, मेरा अजीज माँ बहनों, ये बच्चा जो 4 मर्तबा कह रहा है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बस इतना कहना ही था, इतना कहना ही था। मेरा अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जोश में आ जाती ही, अल्लाह खुशी से झूम जाते ही, फरिश्तों से कहते ही, ए मेरे फरिश्ते जाओ, जिस बाप का बेटा मुझे रहमान कहे, मुझे रहीम कहे और मेरे नाम से पढ़ना शुरू करे, उसके बाप को मैं खबर में अजाब दूं, मुझे शर्म आती है। जाओ उसके बाप के खबर के अजाब को खत्म कर कर, अजाब को बंद करके जन्नत का बिछोना बिछा दो, जन्नत की खिड़की खोल दो। मेरे माँ बहनों, बेटा बाप को देखा भी नहीं है, अव्वल फुर्सत में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ने पर अल्लाह किस तरह खुश हो गया। उसके बाप के कब्र को क्या है, अजाब से रोककर क्या किया है, जन्नत के बिछोना बिछा दिया है। मेरे माँ बहनों कहो, क्या हम सब के लिए जन्नत की बिछाने की जरूरत नहीं, कब्र में हम सब की हिफाजत के लिए जरूरत नहीं क्या? अरे अपने बच्चों को मदरसे को भेजो। बाज क्या है, औरतों के बच्चों को मैं देख रहा हूँ, ना स्कूल को जाते, ना कॉलेज को जाते, ना ही ट्यूशन को जाते, कहीं भी नहीं, मदरसों को भी नहीं जाते, गली कूचों में खेलते खेलते अपने उम्रों को जाया कर रहे हैं। अरे बेकार फिरने वाले बच्चे 12 साल 13 साल 14 साल का हो गया, गंजा भरने वाला हो रहा है, नशा करने वाला हो रहा है, दारू पीने वाला हो रहा है। मेरे माँ बहनों, मादवाना मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस मौजूद है, अपने बच्चों को लेकर जाओ। अरे तुम्हें कपड़े सिलाने की भी ताकत नहीं है, इंशाअल्लाह मदरसे वाले सिलाएंगे, 3 मरतबा बेहतरीन खाना खिलाएंगे। अगर आपका बच्चा वहां बैठकर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर हाफिज कुरान बनेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सरों पर क्या है, एक ऐसा ताज पहनाएंगे क़यामत के दिन जिसकी रोशनी 14वीं रात की चांद से भी ज्यादा चमकदार होगी। मेरे माँ बहनों, अपने बच्चों को मदरसे में लाओ, मदरसों के अंदर फीस नहीं ली जाएगी, मुफ्त पढ़ा दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह गली गली में मदरसे मौजूद हैं। हमारा में एक मदरसा जामियतुल उलूम सनाइया, तुम भी जानते होंगे। अपने बच्चों को लेकर आओ, अगर लाकर जमाना चाहते तो क्या है, महबूब बादशाह साहब जो इस इदारे के सदर हैं, इनसे दरखास्त कीजिए, इंशाअल्लाह आपके बच्चों के साथ मदरसे को लाएंगे। मेरे माँ बहनों, आपका बच्चा 9 साल 10 साल का हो गया, फिक्र कर कर उसकी उंगली पकड़ कर मदरसे में लेकर आओ।
मदरसे में लेकर आओ। हाँ, स्कूल को अगर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं है, सुबह शाम इसको क्या करो, मकतब में कुरान पढ़ाओ, मकतब में कुरान पढ़ाओ। मेरे माँ बहनों, अल्लाह ताला ने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सी आसानियां बताई ही। अरे अपने ईमान को ताजा करो। क्या करो? क्या करो? जरा जोर से बोलो, ईमान को ताजा करो। ताजा ईमान सिर्फ हमारे सर को अल्लाह के सामने झुकाएगा। ताजा ईमान हमारे सर को सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाएगा, कहीं झाड़ के पास नहीं, कहीं झंडे के पास नहीं, कहीं दरगाह के पास नहीं। मेरे माँ बहनों, यह सर अल्लाह ने दी है, इस सर को सिर्फ अल्लाह के लिए झुकाएंगे। समझ पाई बात जी? समझ पाई बात? मेरे माँ बहनों, कहीं ये सर नहीं झुकेगा, झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के यहाँ सजदे में सर झुकेगा, इसके अलावा कहीं और नहीं झुकेगा। अरे क्या है, बास क्या है, नादान औरतें क्या करती हैं, हमारा सालाना भत्ता है समझ कर क्या है दूसरे जगह पर जाती हैं। मेरे माँ बहनों, हराम कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं। इस हाल में अगर हमारी मौत आ जाएगी तो हम जहन्नम को जाएंगे। तौबा करो, तौबा करो। अल्लाह से बढ़कर हम पर रहम करने वाला कोई नहीं है। पैदा उसने किया, रिस्क भी वही देगा, सेहत भी वही देगा, औलाद भी वही देगा। मेरे माँ बहनों, सब कुछ दुनिया में देने वाले वही हैं और आखिरत में देने वाले भी वही हैं। समझ में मेरे माँ बहनों? और ओपन करके बताने की कोई जरूरत नहीं है। यह सर कहाँ झुकेगा? सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा। तमाम खवातीन घर के अंदर जानिमाज डालकर क्या है, सजदा रेज़ होकर खुदा से दुआ करेंगे। मर्द और अहबाब मस्जिदों में जाकर सजदा करेंगे। इसके अलावा कहीं नहीं झुकेगा, इसके अलावा यह सर कहीं नहीं झुकेगा। मेरे माँ बहनों, यह सर की कदर कीमत है, सर की बहुत बड़ी कीमत है। आप देखे होंगे, हाथ नहीं सौ आदमी दिख जाती, पैर नहीं सौ आदमी देख लिए, कान कट्टा, आंख का अंडा, नाक का नट्टा सब हम देख लिए ना। क्या बगैर सर के किसी को देखे आप? बोलो जरा, देखे किसी को आप? अगर बगैर सर वाले को तुम्हें देखो तो भाग जाती, शैतान क्या किए नहीं को नहीं। सर की बहुत बड़ी आजमत है, सर की बहुत बड़ी कीमत है। इस सर को सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाओ, किसी और के सामने नहीं झुकेगा। मेरे माँ बहनों, ये दिन हमारे घरों के अंदर आना है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को क्या करो, अपने छोटे छोटे बच्चों को मदरसे में लाकर छोड़ो। 9 साल 10 साल का हो गया तुम्हारा बच्चा, मदरसे में लाकर छोड़ो। इंशाअल्लाह मदारिस में सिर्फ उर्दू अरबी नहीं, उसके साथ ही साथ इंग्लिश, मैथ्स, तेलुगु भी पढ़ाती, इसको भी पढ़ाते हैं। आप अपने बच्चों को लाकर क्या करो, कुरान के हाफिज बनाओ। वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारे खानदान कबीले वालों की हिफाजत करेगा। मेरे बहनों, कल कयामत के दिन अल्लाह से लड़कर क्या जन्नत में बुलाकर जाएगा, जन्नत में लेकर जाएगा। मेरे माँ बहनों, गर्मी शदीद है, ज्यादा कहना भी मैं पसंद नहीं करता हूँ। बस ये 2 बातें याद रखो। ईमान ताजा होने के खातिर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कसरत से पढ़ो। सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ो। पढ़ेंगे मेरे माँ बहनों? हाँ, सुबह के नमाज के बाद 100 मरतबा क्या करो, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। असर के नमाज के बाद कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ो। इसकी बरकत से हमारे सीनों में ईमान की कुव्वत और ताकत पैदा होगी। इंशाअल्लाह वो ईमान हमें अल्लाह के सामने झुकने की तौफीक अता फरमाएगा, किसी के सामने नहीं है। मेरे माँ बहनों, आखिर में मैं भी कह दूं, अपने क्या है, अस्मत का ख्याल रखो, इज्जत का ख्याल रखो। आज हमारे माँ बहने ज्यादा से ज्यादा लेन देन का मामला करते हैं। आज तुम सबको क्या है, हराम से बचने के खातिर सोसाइटी तुम्हें दाल दलिया वगैरह दे रहा है, महीने का भत्ता तुम्हें दे रहा है। क्यों? हराम से बचने के खातिर। तुम लोग क्या करते हैं, मैं तुमको निशाना नहीं कर रहा हूँ, हालात वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ। अरे गैरों के पास क्या करते हैं, इंटरेस्ट को पैसे ले लेते हैं, 10,000 के नाम को ले लेते हैं, 9,000 हाथ में रखता है, फिर रोजाना घर के पास आता है। मेरे माँ बहनों, हमारी हालत कैसी होती मालूम नहीं, देने का हाल ही आने मालूम नहीं, हमसे वो दोस्ती कर लेगा, हमारे घरों के अंदर आएगा। बताओ पर्दे का ख्याल हमने क्या किया, पर्दे का ख्याल हमने क्या किया? मेरे माँ बहनों, ये पर्दे का ख्याल भी रखो। अरे जरूरत है हमारी, अव्वल फुर्सत में अल्लाह से मांगो। मेरे माँ बहनों, अल्लाह से तुम जब मांगोगे, किसी एक ऐसा दिल दरिया रखने वालों का अल्लाह पाक उठा के खड़ा करेगा। तुम अपने जरूरियात को पहले अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह इंतजाम फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को कुरान पढ़ाने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। हमारे ईमान मजबूत होने के खातिर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ते रहने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। मेरे माँ बहनों, अब तुम फैसला करो, क्या तुम्हारे घरों में बच्चे ही ना,
अगर बेटे नहीं, बेटे बेटियां बड़े हुई तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। नवासे भी होंगे, पोते भी होंगे, अहद करो, इरादा करो, हम अपने पोते को, नवासे को या बेटे को सही कुरान का हाफिज बनाएंगे। बनाएंगे माँ, बनाएंगे। हाँ, अगर तुम्हारे बच्चों को, नवासों को, पोतों को छोड़ना ही है, महबूब बादशाह भाई के जरिए से क्या है, हमारे मदरसे तक आप पहुंच सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, सय्यात को सना से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह हमने जो कहा है, जो सुना है, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह घरों में मासूम बच्चे बच्चियाँ हो तो उनको दीन की तालीम देने की तौफीक अता फरमा, बड़े हो तो दीन सिखाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जितने माँ बहन यहाँ पर बैठे हुए ही, इन सब के घरों में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम होने की तौफीक अता फरमा, पाँचों वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, अजान के अदब करने की तौफीक अता फरमा, अजान सुनते ही सर पे कपड़ा डालकर अदब से अजान के कलिमात को सुनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको भी अजान के कदर व कदर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह देने वालों के अल्लाह जान माल अमाल में बरकत अता फरमा। इस सोसाइटी को खड़ा कर अल्लाह महबूब बादशाह भाई जो खिदमत कर रहे हैं, या अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमा। इनके साथ उठने बैठने वाले, इनके ताउन करने वाले सबके जान माल अमाल में तो बरकत अता फरमा। या अल्लाह बड़ी जमात यहाँ लेने के लिए बैठे हैं, मालिक तू चाहे तो अगले साल तक ये देने वाले बनेंगे। या अल्लाह इनको देने की तौफीक अता फरमा। रब्ब ज़ल जलाल हम सबको, हम सब के ज़रूरियात को अपने फजल से तो पूरा फरमा। शिर्क और बिदअत गुमराही से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तुझे रब मान कर तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस दुआ को अपने फजल और करम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़त फ़िल में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, सारे जहां को पालने वाला अल्लाह तबारक व तआला। हज़रात, आज से एक बार पहले इनको मियाँ बीबी को दो दिनों को भी मैं मियाँ बीबी को 2 दिनों को भी रोड पर जाता था तो गाड़ी लेकर ढकल ले आते थे, भाड़े की गाड़ी, चपलान के साथ कैसे रखे थे, चपलान बेचने खातिर धूप में। अच्छा पहले को तटिया रही नहीं फिर आराम से सोची अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खुद से ये IUWS वाज सहकार तो 40वीं गाड़ी है। तो चपला रखने की वजह से गाड़ी में नाम लिखा नहीं, मैं देखो नाम आपको ऊपर देखो, रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी, तो ऊपर नाम है, देखो नाम और सोसाइटी का नाम ऊपर है, नीचे आगे का गाड़ी का नाम लिखो, नंबर लिखो, खाली है नाम ऊपर है, रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी। उधर भी है देखो, इधर भी नाम है देखो, रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी। तुम्हारा नाम क्या है हजरत? आदर कहाँ के रहने वाले? कुमारगुंटा। तुम्हें एप्लीकेशन दे कितने दिन हुआ? 5 दिन हुआ। 5 दिन हुआ। तुम्हारा नाम क्या माँ? हाजिरा। हाजिरा। तुम मियाँ भी दोनों भी? हाँ। तुम्हें काम नहीं मिली सो? हाँ, तुम्हारे शादी गोल्डन साल में शादी खाने दफा के मिली है। आप भी कहते हैं गाड़ी को पैसे दे तुम्हें कहते हुए गाड़ी के पैसे देने, गाड़ी बेच देना नहीं कर लेना, बेचते नहीं वो कहीं को अल्लाह दिलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हजरात इसको जो भी इंतजाम किए हैं, जो भी इंतजाम किए हैं, जो अपने घर में है, अपने घर में जो भी जो इसका इंतजाम किए हैं, अल्लाह को दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए। दिखाने का मकसद क्योंकि ये रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी खिदमत खल्क़ के लिए हर हमेशा खिदमत के कादिर काम करती आ रही है, करता भी हूँ, अल्लाह को से दिखाता भी हूँ। मैं एक बात बोली तो उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता हूँ, मैं झूठे सच्चे बात बोलता नहीं, घुमा फिरा को बोलता नहीं मैं। और दूसरी बात क्या आगा तो ये जो इदारा चलता है, जिन्हें 1.25 घंटे में राशन ले जाते हैं, ये सब किसका? अल्लाह का फजल है। आप लोगों जो चाहते हैं, सोसाइटी प्यार मोहब्बत करते हैं, लोग चाहने वाले होने की वजह से ये सोसाइटी का अल्लाह खुद से खिदमत खल्क़ के लिए चलता है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला ता क़यामत तक खिदमत खल्क़ के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, दो हमें काम में नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? बशीर। कब से जाते राशन तुम्हें? मेरे शोहर गुजरे से 11-12 साल से देते हैं। कंटिन्यू आती हैं? अल्लाह खुद अल्लाह राशन आती हैं। अब उन्होंने कहा भाई मुझे 3 बरसात से ले आती हैं राशन हमें। ये कपड़े सिली मशीन देखो तो एक अल्लाह के नेक बंदे ने 2 कपड़े सिली मशीन दिलाई हैं। ये पहली एक मशीन है उषा कंपनी की, मोटर के साथ है, देखो मशीन है, सब मोटर के साथ है।
अब उसके ऊपर जरिया बन जाता, राशन आता नहीं, नकुल हजरत बच्ची सी थी, मैं बच्ची खा बस अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पाल लेती है, पाल लेती मेरी बच्ची। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो हजरत मर्द बच्चे से बैग बच्चे से बेहतर है, क्योंकि वो तो बट बच्चे नहीं हजरत, हाँ बैग बच्चे जो भाई को बच्चा दो भी सारे हम, छोटी बेटी मेरे पास से है मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाल से 2 भाई को बच्चा। बस अल्हम्दुलिल्लाह। दो दिन शादी होंगी हाँ बस मेरी बस बोलता। बच्ची। तुम्हारा नाम क्या नाम है मुझे? एक बानो कब से लाते राशन तुम्हें? 8 साल से आए 2017 में डेट डाल कर, इसमें 2017 में डाल कर डेट डाल कर, अब तुम्हें इसके ऊपर जी लेती है। हाँ जिले के बेटी है तुम्हारा, आए बच्ची है, अल्लाह को इनकी बेटी भी कपड़े से मशीन दे सीले को, इनके माँ साहब को जो गुजारा राशन के बगैर, अब उसके ऊपर तुम पल जाना का, तो जो राशन दिए हैं आज हमारा राशन खाना तो कहाँ होगा? हाँ ऊपर रखो, उसके ऊपर रखो। देखो अभी राशन है, अब ये राशन है, ये लास्ट राशन कार्ड में भी हमें काट लेती है, ये एग्रीमेंट भी करा कार्ड, ये बेचना नहीं, मैं बेचना नहीं है, नहीं वो तो बेचना नहीं है, तुम जी लेना उसके ऊपर, मुझे खुशी होती है जब क्या मैं बेचती खाते पे बेचना को अल्लाह के लेके तो अल्लाह किसी जरिए बनाया है, बेचना को इंशाल्लाह तबारक व तआला अल्लाह हम सबको भी नेक हिदायत नसीब फरमाए, दोनों जहाँ में कामयाब नसीब फरमाए, जो इसमें ताउन के हैं 2 मिशनों को इंशाल्लाह उन लोगों को अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, सारे जहां को पालने वाला अल्लाह तबारक व तआला। हज़रत अर्रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक बार पहले एक अल्लाह के बंदे मियाँ और बीबी चपला बेचते थे धूप में, अब उसमें धूप में कहीं को चपला बेचते थे, तो भाड़े गाड़ी बोली, भाड़े गाड़ी में से खास गाड़ी जाती है रहमान सोसाइटी का, तो बोले तो रहमान सोसाइटी गाड़ी दिलाई है, चपला में रख लिया ना, गाड़ी का नंबर 40, आप देख सकते हैं गाड़ी का नंबर 40 से ये अर्रहमान इमदाद सोसाइटी चपला है, इसको लिखा नहीं मैं, हाँ ऊपर लिखे देखो अर्रहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी का, तो कहीं को चपला जहाँ पर अल्लाह का नाम होता का तो लिखा नहीं, सब खरीदने सब लियो। और एक बात क्या तो कहते पैसे लिखा माँ, पैसे क्या तो नहीं क्या, एक गाड़ी बेचना नहीं, ये एग्रीमेंट है, नहीं हर बात बोलता हूँ, एग्रीमेंट गाड़ी बेचना नहीं, तब तक तुम्हें खाते पे सुकून से जो इतना दिले ही उनके हक में दुआ करो इंशाल्लाह तबारक व तआला। क्या भाई अब तुम गाड़ी लेके जा सकती तुम्हें इंशाल्लाह, चलो तुम्हें कब तो आगे देख, तुम घर का नहीं देखते हो गाड़ी बेचना, देखो चपला का होगा सीजन हो, तरकारी डाल लो या होटल लगा लो, कोसा भी करो पढ़ो बच्चे, कोसा भी करो इंशाल्लाह तबारक व तआला देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम्हें खोड़े देखना खोड़े इन हमारा कम्युनिटी नंबर चुने भी कि हमारे दोस्त नए आने की वजह से इन्होंने क्या नाम तुम्हारा? दादा बोली, अल्लाह खैर करे इनको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।